जोशुआ 10, 11, 12 चैप्टर पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। रिबांत खम्बरहा शरबे खतीन रबहंतरा हल्लरबहा खसियांदुरो कुंबरहु शरा खसिराल रबहु खसियांदुरा दरबेगदिगन मिरिग हल्लरबहा का शरबे खतीन रबहंबरा खुल्लरहस्सा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। यहोशू की पुस्तक जोशुआ 10, 11, 12 किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। हर एक अशुद्धता, हर एक अशक्त करने वाली घटनाएं जो भी हमारे जीवन के अंदर कुरेद कर पिता पहुंच गई है, जहां से पिता परमेश्वर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसी अवस्थाओं में फंसे हैं पिता, ये वचन ऐसा काम करने दीजिए कि दो धारी तलवार होकर भेद भेद करके पिता परमेश्वर गूदे गूदे अलग कर सके, मांसपेशियों में, हड्डियों में पिता ये बदलाव ला सके और हमारा जीवन बदल कर पिता उस पड़े हुए गड्ढे के अंदर से बाहर ला सके। अंधियारे में से पिता उजियाले में लेकर आने वाला परमेश्वर हो आप। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, ये वचन हमारी उन्नति का कारण बन रहा है, इसीलिए धन्यवाद। हम पहले थे उस स्तर पर नहीं, बल्कि ऊंचे उठ चुके हैं परमेश्वर की योजना में। हम धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में जीत का झंडा देने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी प्रोफेसीज पूरी करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को पिता परमेश्वर ये वचन आज का लाभदायी होने के लिए हम विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Joshua 10 chapter 1 verse से पढ़ेंगे। Now it came to pass when Adonizedek king of Jerusalem had heard how Joshua had taken Ai and had utterly destroyed it as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king, and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel and were among them, that they feared greatly, because Gibeon was a great city as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all the men thereof were mighty. Wherefore Adonizedek king of Jerusalem sent unto Hoham king of Hebron, and unto Piram king of Jarmuth, and unto Japhiah king of Lachish, and unto Debir king of Eglon, saying, Come up unto me, and help me, that we may smite Gibeon, for it hath made peace with Joshua and with children of Israel. Therefore the 5 kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered themselves together and went up, they and all their hosts, and encamped before Gibeon, and made war against it. And the men of Gibeon sent unto Joshua to the camp to Gilgal, saying, Slack not thy hand from thy servants. Come up to us quickly, and save us, and help us, for all the kings of the Amorites that dwell in the mountains are gathered together against us. So Joshua ascended from Gilgal, he and all the people of war with him, and all the mighty men of valor. And the Lord said unto Joshua, Fear them not, for I have delivered them into thine hand. There shall not a man of them stand before thee. Joshua therefore came unto them suddenly, and went up from Gilgal all night. And the Lord discomfited them before Israel, and slew them with a great slaughter at Gibeon, and chased them along the way that goeth up to Beth-horon, and smote them to Azekah and unto Makkedah. And it came to pass, as they fled from before Israel, and were in the going down to Beth-horon, that the Lord cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died. They were more which died with hailstones than they whom the children of Israel slew with the sword. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou mourn in the valley of Ajalon.
And the sun stood still, and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day. And there was no day like that before it or after it, that the Lord hearkened unto the voice of a man, for the Lord fought for Israel. And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp to Gilgal. But these 5 kings fled and hid themselves in a cave at Makkedah. And it was told Joshua, saying, The 5 kings are found hid in a cave at Makkedah. And Joshua said, Roll great stones upon the mouth of the cave, and set men by it for to keep them. And stay ye not, but pursue after your enemies, and smite the hindmost of them, suffer them not to enter into their cities, for the Lord your God had delivered them into your hand. And it came to pass, when Joshua and the children of Israel had made an end of slaying them with a very great slaughter, till they were consumed, that the rest which remained of them entered into fenced cities, and all the people returned to the camp to Joshua at Makkedah in peace. None moved his tongue against any of the children of Israel. Then said Joshua, Open the mouth of the cave, and bring out those 5 kings unto me out of the cave. And they did so, and brought forth those 5 kings unto him out of the cave: the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon. And it came to pass, when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men of war which went with him, Come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near, and put their feet upon the necks of them. And Joshua said unto them, Fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage, for thus shall the Lord do to all your enemies against whom ye fight. And afterward Joshua smote them, and slew them, and hanged them on 5 trees, and they were hanging upon the trees until the evening. And it came to pass at the time of the going down of the sun, that Joshua commanded, and they took them down off the trees, and cast them into the cave wherein they had been hid, and laid great stones in the cave's mouth, which remain until this very day. And that day Joshua took Makkedah, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof he utterly destroyed them, and all the souls that were therein he let none remain. And he did to the king of Makkedah as he did unto the king of Jericho. Then Joshua passed from Makkedah, and all Israel with him, unto Libnah, and fought against Libnah. And the Lord delivered it also, and the king thereof, into the hand of Israel, and he smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein he let none remain in it, but did unto the king thereof as he did unto the king of Jericho. And Joshua passed from Libnah, and all Israel with him, unto Lachish, and encamped against it, and fought against it. And the Lord delivered Lachish into the hand of Israel, which took it on the 2nd day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein, according to all that he had done to Libnah. Then Horam, king of Gezer, came up to help Lachish, and Joshua smote him and his people until he had left him none remaining. And from Lachish Joshua passed unto Eglon, and all Israel with him, and they encamped against it, and fought against it. And they took it on that day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein he utterly destroyed that day, according to all that he had done to Lachish. And Joshua went up from Eglon,
and all Israel with him unto Hebron, and they fought against it. And they took it and smote it with the edge of the sword, and the king thereof, and all the cities thereof, and all the souls that were therein, he left none remaining, according to all that he had done to Eglon, but destroyed to it utterly, and all the souls that were therein. And Joshua returned, and all Israel with him, to Debir, and fought against it. And he took it and the king thereof and all the cities thereof, and they smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed all the souls that were therein. He left none remaining, as he had done to Hebron, so he did to Debir, and to the king thereof, as he had done also to Libnah and to her king. So Joshua smote all the country of the hills, and of the south, and of the vale, and of the springs, and all their kings. He left none remaining, but utterly destroyed all that breathed, as the Lord God of Israel commanded. And Joshua smote them from Kadesh Barnea even unto Gaza, and all the country of Goshen, even unto Gibeon. And all these kings and their land did Joshua take at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. And Joshua returned all Israel with him unto the camp to Gilgal. हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 first verse. Now it came to pass, when Adoni-Zedek king of Jerusalem had heard now Joshua had taken 11 chapter पढ़ेंगे. Chapter 11, first verse. And it came to pass, when Jabin, king of Hazor, had heard those things, that he sent to Jobab, king of Madon, and to the king of Shimron, and to the king of Akshaph, and to the kings that were on the north of the mountains and of the plains south of Chinneroth, and in the valley, and in the borders of Dor, or on the west, and to the Canaanite on the east and on the west, and to the Amorite and the Hittite and the Perizzite and the Jebusite in the mountains, and to the Hivite under Hermon in the land of Mizpeh. And they went out, they and all their hosts with them, much people, even as the sand that is upon the sea shore, in multitude, with horses and chariots very many. And when all these kings were met together, they came and pitched together at the waters of Merom to fight against Israel. And the Lord said unto Joshua, Be not afraid because of them, for tomorrow about this time will I deliver them up all slain before Israel. Thou shalt half their horses and burn their chariots with fire. So Joshua came and all the people of war with him against them by the waters of Merom suddenly, and they fell upon them. And the Lord delivered them into the hand of Israel, and who smote them and chased them unto great Zidon and unto Misrephothmaim and unto the valley of Mizpeh eastward, and they smote them until they left them none remaining. And Joshua did unto them as the Lord bade him. He halved their horses and burnt their chariots with fire. And Joshua at that time turned back and took Hazor, and smote the king thereof with the sword for Hazor before time was the head of all those kingdoms.
And they smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them. There was not any left to breathe, and he burnt Hazor with fire. And all the cities of those kings and all the kings of them did Joshua take and smote them with the edge of the sword, and he utterly destroyed them as Moses, the servant of the Lord, commanded. But as for the cities that stood still in their strength, Israel burned none of them, save Hazor only, that did Joshua burn. And all the spoil of these cities and the cattle the children of Israel took for a prey unto themselves, but every man they smote with the edge of the sword until they had destroyed them, neither left they any to breathe. As the Lord commanded Moses his servant, so did Moses command Joshua, and so did Joshua. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. So Joshua took all that land, the hills and all the south country, and all the land of Goshen, and the valley and the plain and the mountain of Israel, and the valley of the same, even from the Mount Halak that goeth up to Seir, even unto Baal-gad in the valley of Lebanon, under Mount Hermon, and all their kings he took and smote them and slew them. Joshua made war a long time with all those kings. There was not a city that made peace with the children of Israel, save the Hivites, the inhabitants of Gibeon. All other they took in battle. For it was of the Lord to harden their hearts, that they should come against Israel in battle, that he might destroy them utterly, and that they might have no favor, but that he might destroy them, as the Lord commanded Moses. And at that time came Joshua and cut off the Anakims from the mountains, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel. Joshua destroyed them utterly with their cities. There was none of the Anakims left in the land of the children of Israel, only in Gaza, in Gath, and in Ashdod there remained. So Joshua took the whole land according to all that the Lord said unto Moses, and Joshua gave it for an inheritance unto Israel according to their divisions by their tribes, and the land rested from war. Joshua chapter 12, first verse पढ़ेंगे. Now these are the kings of the land, which the children of Israel smote and possessed their land on the other side Jordan, toward the rising of the sun, from the river Arnon unto Mount Hermon, and all the plain on the east. Sihon, king of the Amorites, who dwelt in Heshbon, and ruled from Aroer, which is upon the bank of the river Arnon, and from the middle of the river, and from half Gilead, even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon, and from the plain to the sea of Chinneroth on the east, and unto the sea of the plain, even the salt sea on the east, the way to Beth-jeshmoth, and from the south under Ashdod Pisgah, and the coast of Og, king of Bashan, which was of the remnant of the giants that dwelt at Ashtaroth and at Edrei, and reigned in Mount Hermon, and in Salca, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon, king of Heshbon. Then did Moses, the servant of the Lord, and the children of Israel smite, and Moses, the servant of the Lord, gave it for a possession unto the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh. And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel smote on this side Jordan on the west, from Baal-gad in the valley of Lebanon, even unto the Mount Halak,
that goeth up to Seir, which Joshua gave unto the tribes of Israel for a possession according to their divisions. In the mountains and in the valleys and in the plains and in the springs and in the wilderness and in the south country, the Hittites, the Amorites and the Canaanites, the Perizzites, the Hivites and the Jebusites. The king of Jericho won, the king of Ai, which is beside Bethel, won, the king of Jerusalem won, the king of Hebron won, the king of Jarmuth won, the king of Lachish won, the king of Eglon won, the king of Gezer won, the king of Debir won, the king of Geder won, the king of Hormah won, the king of Arad won, the king of Libnah won, the king of Adullam won, the king of Makkedah won, the king of Bethel won, the king of Tapua won, the king of Hefer won, the king of Aphek won, the king of Lasharon won, the king of Madon won, the king of Hazor won, the king of Shimron Meran won, the king of Akshaph won, the king of Tanak won, the king of Megiddo won, the king of Kadesh won, the king of Jokneam of Carmel won, the king of Dor in the coast of Dor won, the king of the nations of Gilgal won, the king of Tirzah won, all the kings 30 and 1। इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यहोशू 10 अध्याय 11 अध्याय 12 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशू ने आई को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं। हम अध्याय 10 पढ़ रहे हैं, पहले वचन से पढ़ा भी, दूसरे वचन से आगे जाएंगे। तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और आई से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमुत के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एगलोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमुत, लाकिश और एगलोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना और शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा
तो अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात बाशार याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया, और वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हो। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उनके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़ वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एगलोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनके गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया, और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहाँ वे छिप गए थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए। वे आज तक वही धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा के से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा, और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चलकर एगलोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा, और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा,
और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था, वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उनमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था, वैसा ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उनमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था, वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। यहोशू 11 अध्याय पहले वचन से। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नरेत के दक्षिण के अराबों में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिव्वियों को बुलवा भेजा, और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इसराइलियों से लड़ने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इसराइलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तो उनको घोड़ों के सुम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इसराइलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया। और बड़े नगर सीदोन और मिस्रपोतमेत तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हम हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर
बसा था नहीं जलाया, और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इसराइलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारी दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश, अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को, हलाक नाम पहाड़ से ले जो सैर के चढ़ाई पर है, बलगाद तक जो लबानोन के मैदान में हरमोन पर्वत के नीचे है, जितने देश है उन सब को जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिव्वियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इसराइलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इसराइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। इसराइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई रह गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने यह सारा देश ले लिया और उसे इसराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू 12 अध्याय पहले वचन से। यरदन पार सूर्योदय की ओर, अर्थात अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इसराइलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये है। एमोरियों का हेशबोन वासी राजा सीहोन, जो अर्नोन नाले के किनारे के अरोअर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद पर और किन्नरेत नाम ताल से लेकर बेत्यशिमोत से होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एदई में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत सल्का और गशूरियों और मकियों के सिवाने तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन के सिवाने तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने उनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया, और यरदन के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगात से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इसराइलियों ने मारकर उसका देश इसराइलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके उनका देश इसराइलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं: हित्ती और एमोरी और कनानी और परिजी और हिव्वी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक
बेतल के पास के आई का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यर्मूत का राजा, एक लाकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गेजेर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेदेर का राजा, एक होरमा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिबना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मदोन का राजा, एक हसोर का राजा, एक शिमोन मरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजा, एक मगिद्दी का राजा, एक केदेश का राजा, एक करमेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश में के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोयम का राजा और एक तिरसा का राजा। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों में हमें परमेश्वर फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमन्स 5 चैप्टर 12 वर्स से 21 वर्स, सैम्स 104 चैप्टर, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन से 21 वचन, भजन संहिता 104 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में हम अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय पर्सनल टाइम में इसे पढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर जो सुधार हम में लाना चाहता है उसको हम समझ सके और ग्रहण कर सके। हमने अकेले में पर्सनल टाइम में बैठने की वजह से पवित्र आत्मा का हम आसानी से मान सकते हैं, हमारे अंदर संघर्ष नहीं रहेगा। ज़रूरी नहीं सभी ने अकेले में पर्सनल टाइम व्यक्तिगत समय में ही इसे पढ़ना है। आप अपने तरीके से इन अध्यायों को पढ़ सकते हैं, इन वचनों को पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें वचनों के ज्ञान और बुद्धि समझ में भरने के लिए धन्यवाद करते। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए वचनों में और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।